Hello friends, I hope you guys are doing good. Welcome to my channel, The Unaccountant, and thank you for watching the video so far. Today we are going to discuss, one of the key important aspects of the merger and acquisition, that is how the deals are closed. So today we are not going to discuss the typical our accounting standard or the IFRS. Today, like I mentioned, we are going to discuss how the deals are closed in the M&A market. So friends, before we start, I would like to share with you one example. Let's say Reliance Industries Limited, or I can say a real life example like let's say Tata. Tata, we all know Tata acquired Jaguar in 2007-8, I believe. So think about it, how the Tata acquired the Jaguar. Of course, there would have been due diligence carried out at a very detailed phase. Then of course, the agreements and the terms and conditions were agreed between the both parties, buyer and seller, and then it should have been drafted into the agreement, which we say the share purchase agreement. And then the actual transfer took place. Like if I say, for example, let's say due diligence was carried on 31st of December, and the actual transfer was carried, actual transfer was on, let's say, 30th of June. So think about it. From which date the Tata acquired, or I can say from which date the economic benefit or the risk and reward of the Jaguar transferred to Tata, whether it was 31st of December or it was 30th of June. Okay, getting my point. So friends, for M&A transaction there is no law. ऐसा नहीं है कि कोई लॉ होना जरूरी है कि इस डेट को ही आपको ट्रांसफर करना है अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड, नहीं, ऐसा नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द बायर and the terms and conditions agreed between the both parties, that is buyer and seller. Cool. So friends, choosing a proper closing mechanism is a key decision in each and every M&A transaction. It's not like कि हमने due diligence कर दिया और हमारा काम खत्म. No, it's totally not like that. From the buyer or from the seller's advisor point of view, we have to advise our client that which option is the best. So there are two mechanisms. Number one is the completion account mechanism, and number two is the locked box mechanism. So today in this video, in this training, we will discuss the both mechanism in detail with some real life example, and also we will discuss why and how these both methods differ from each other, and what are the benefits and disadvantages is from the buyer's point of view and from the seller's point of view. Okay. So friends, lockbox mechanism is quite popular nowadays across the Europe for the recent M&A transactions. However, historically, if I talk about, the completion accounts were used by the buyer and seller. So if I say what is the difference between these two mechanisms, so in one line I can say that there is, the main difference between the lockbox mechanism and the completion account mechanism is the timing of the transaction. So the valuation or the considerations are same in both the scenario. Only the difference is of timing. When the risk and reward is transferred, or I can say when what is the cut-off date which will take place for the transaction. Okay? So historically, what used to happen in the completion account mechanism, both buyer and seller agree on a value of the business, considering the cash-free, debt-free, and normal working capital requirements. And post the transaction close, what they used to do, they used to compare the agreed terms and conditions which were set out in the share purchase agreement from with the actual I can say the working capital or the cash or net debt position, and any difference was taken as a purchase price adjustment. So first of all, we have to understand कि भाई कैश फ्री क्या होता है, डेट फ्री क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, नॉर्मल लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होती है. तो कैश फ्री, डेट फ्री अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलता हूँ तो इट मींस दैट ऑल द कैश टू बी टेकन बाय द सेलर एंड ऑल द डेट टू बी बोर्न बाय द सेलर. ओके. एंड नॉर्मल लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होती है हमारी? नॉर्मल लेवल वर्किंग कैपिटल इज डेट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल व्हेन अ बायर, अगर मैं एक बायर हूँ एंड व्हेन आई सीक टू परचेज
stake in any of the target. So from the day one, that target is able to meet its requirement of the trading cycle. It's not like that कि मैंने आज कल अपनी बिजनेस परचेज करा और मैं कल से ही मेरे को जरूरत पड़ी उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू. So this is very important to determine the normal level of working capital in each and every transaction. ठीक है? So now let's come to again कि इन दोनों mechanisms में हम जो बातें हैं वो कैसे होती हैं. So basically there are 3 dates which we have to consider in both the scenario, in both the mechanisms. One is the due diligence date, or I can say the locked box date. Number 2 is the SPA signing date, which is share purchase agreement signing date, and number 3 is the closing date. So what happens, जब भी कोई डील हमारी स्टार्ट होती है, so उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी टर्म शीट बनती है. टर्म शीट में क्या होता है कि जो बायर हैं और सेलर हैं, जो दोनों पार्टीज हैं, वो आपस में डिस्कस करती हैं कि इसका जो ड्यू डिलिजेंस होगा, इसका स्कोप कितना होगा और हम क्या क्या पैरामीटर्स पे ड्यू डिलिजेंस को परफॉर्म करेंगे. कि हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करेंगे, एचआर ड्यू डिलिजेंस करेंगे, टैक्स का करेंगे, इन्वायरमेंटल करेंगे, और उसके अंदर भी हम किस किस एरियाज पे अपना फोकस रखेंगे. कूल. सो उसमें क्या होता है हमारा कि कोई एक डेट हमने डिटरमाइन कर लेते हैं कि लेट्स से प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो भी हमारी लेटेस्ट ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं हमारे, जनरली वो डेट हम लेके चल देते हैं ड्यू डिलिजेंस की डेट, क्योंकि हमारे पास अकाउंट्स जो है वो ऑडिटेड होते हैं मैनेजमेंट के. तो एक हम बीइंग अ टीवी प्रोफेशनल हमें एक कंफर्ट होता है कि हमें ठीक है, यहाँ अकाउंट्स तो ऑडिटेड हैं कि कंपनी में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, दैट आर ट्रू एंड फेयर. ठीक है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हमने वही डेट लेके चलनी है. अगर लेट्स से इफ द टाइमिंग डिफरेंस इज लार्ज, so then of course we can take some other date. Let's say 31st December was the audit date, और आज हम बात कर रहे हैं let's say 30th of June. So हम 30th जून को भी डेट लेके चल सकते हैं फॉर आवर ट्रांजेक्शन डिलीजेंस पर्पस. ठीक है, सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमें वो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेट है वही लेके चलनी है. तो होता क्या है प्रैक्टिकली, तो सबसे पहले जो डेट हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस डेट को हम करेंगे, और उसके पहले के जो पीरियड्स हैं, जो हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं, वो हम अपने स्कोप में कवर करने वाले हैं. उसका हम क्या करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं. ठीक है, और जब हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो उसमें हम 3 चीजें जरूर आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो कोई सी भी ट्रांजेक्शन हो मेरी. नंबर 1 इज द ऑफ कोर्स द एडजस्टेड एबिटा, नंबर 2 is the net cash or debt, and number 3 is the normal working capital or the net working capital for that particular business or target. Okay. अब जब ये हमने आइडेंटिफाई कर ली, अगर मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि बायर ने अगर जब आइडेंटिफाई कर लिया तो वो सेलर के पास जाता है और वो कहता है कि भाई देखो, ये मेरे अकॉर्डिंग आपका एडजस्टेड एबिटा है, ये मेरे अकॉर्डिंग नेट डेट है, ये मेरे अकॉर्डिंग हमारी इस बिजनेस के लिए नॉर्मल वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए. उसके बाद क्या करते हैं, वो दोनों पार्टी बैठ के ये जो सारी चीजें होती हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं. डॉक्यूमेंट को हम क्या नाम देते हैं, शेयर परचेज एग्रीमेंट. तो जिस डेट को जब दोनों पार्टी एग्री करके साइन करती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको हम डेट देते हैं शेयर परचेज एग्रीमेंट साइनिंग डेट, एसपीए साइनिंग डेट. ठीक है, अब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस रुक जाता है यहाँ पे, नहीं, बिजनेस कंटिन्यू, बिजनेस रिमेन्स टू कैरी ऑन. वो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि सेलर बिजनेस को रन करता है या बाय करता है, दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट. ठीक है जी, बिजनेस कैरी होता गया, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी आइडेंटिफाई होती गई. फिर बाद में क्या होता है, एक हमारी क्लोजिंग डेट आती है कि लेट्स से अगर मैं वही एग्जांपल लेता हूँ अपना कि 30th ऑफ जून को हमारी ड्यू डिलिजेंस की डेट थी, और आई कैन से 31st ऑफ अगस्त को हमने शेयर परचेज एग्रीमेंट पे साइन कर लिया, और लेट्स से 30th ऑफ सितंबर इज माय क्लोजिंग डेट, जहां पे एक्चुअल ओनरशिप का जो ट्रांसफर होगा कि सेलर हट जाएगा और बायर आ जाएगा, तो वो डेट होती है मेरी क्लोजिंग डेट. तो क्या होता है कि ये 3 डेट मेरी हो गई, तो दोनों सिनेरियो के अंदर हमें ये डेट तो हमारे पास होंगी. अब द ओनली द डिफरेंस इज द टाइमिंग, जो मैंने पहले बताया था आपको कि टाइमिंग का डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो बातें हैं, जो ड्यू डिलिजेंस है वो हम यहाँ पे भी करेंगे, वो हम यहाँ पे भी करते हैं. जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितना होगा, एडजस्टेड एबिटा कितना होगा, वो यहाँ पे भी सेम होगा, सेम अप्रोच से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी सेम अप्रोच से कैलकुलेट करेंगे. द डिफरेंस कम्स हियर. कहाँ डिफरेंस आता है कि जो मेरी कंप्लीशन अकाउंट मॉडल है, जो मेरा कंप्लीशन अकाउंट मैकेनिज्म है, उसमें क्या होता है कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, मेरा क्लोजिंग डेट पे. कहाँ पे ट्रांसफर होगा, मेरा क्लोजिंग डेट पे. लेकिन
जो मेरा लॉक बॉक्स मैकेनिज्म है उसमें बोला जिस दिन ड्यू डिलिजेंस की डेट थी मेरी उसी दिन पर ट्रांसफर हो जाता है। वो क्यों होता है? जनरली क्या होता है कि लॉक बॉक्स मैकेनिज्म में बायर जो है वो देखता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखता है। और सेलर के लिए क्या रहता है कि सेलर को बार बार ड्यू डिलिजेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना बायर को होती है, क्योंकि कंप्लीशन अकाउंट में क्या होगा, जो मैंने चलो मैं आपको एक और तरीके से इसको समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमने ड्यू डिलिजेंस करा, हमने ये लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद क्या होगा, जब क्लोजिंग डेट होगी मेरी, यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट होगी, यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस हम दोबारा करेंगे। जो अकाउंट्स मैनेजमेंट जो है वो दोबारा प्रिपेयर करेगा एज ऑन द क्लोजिंग डेट। किस बेस पे करेगा? जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी एसपीए के अंदर डिफाइन हो रखी हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल के अंदर कौन कौन से जीएल अकाउंट्स आएंगे मेरे, कौन कौन से जीएल कोड्स आएंगे, कौन कौन सी जीएल डिस्क्रिप्शंस आएंगी, उन बेसिस को लेके हम यहाँ पे दोबारा जो मैनेजमेंट अकाउंट्स है उससे हम एडजस्टेड एबिटा निकालेंगे, नेट डेट कैश निकालते हैं और हम निकालते हैं अपनी नॉर्मल वर्किंग कैपिटल। और जो डिफरेंस होता है ना मेरा, जो हमने पहले एग्री किया था कि इस बिजनेस के लिए इतनी होनी चाहिए और लेट से निकल के ही कुछ और, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हम एडजस्ट करते हैं अपने परचेज प्राइस एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो नाउ अगेन कम टू द पॉइंट ऑफ कंप्लीशन अकाउंट। तो कंप्लीशन अकाउंट लाइक आई मेंशन कि यहाँ पे हमने दोबारा से बायर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करने के बाद लेट से यहाँ पे मेरी नॉर्मल वर्किंग कैपिटल आ रही थी 100 मिलियन और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आ रही है 120 मिलियन। तो जो दोनों का डिफरेंस है 20 मिलियन का, दैट विल बी कंसीडर्ड एज माय परचेज प्राइस एडजस्टमेंट, जिसका ट्रू अप मेरे को जो फाइनल कंसीडरेशन में पे करूंगा वहां पे होता है। ये मैंने यहाँ पे फाइनल कंसीडरेशन क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि जो हमारी शेयर परचेज एग्रीमेंट की साइनिंग डेट होती है और जो क्लोजिंग डेट होती है उस दौरान भी जो बायर है वो एस्टिमेट करता है कि भाई इस बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल है या एडजस्टेड एबिटा है वो क्या होने वाला है, और उसके बेस पे वो एक इनिशियल लॉट ऑफ पेमेंट जो है सेलर को कर देता है। तो कुछ पेमेंट मैंने यहाँ कर दी और जो ट्रू अप निकल गया, जो मेरा डिफरेंस निकल गया, वो मैंने फाइनल एडजस्टमेंट जो थी मेरी वो मैंने यहाँ पे कर दी। सो दिस इज द कंप्लीशन अकाउंट और द ट्रेडिशनल मॉडल जो अभी तक चलता था हमारी एम&ए मार्केट में। अब क्या हुआ, अब एक नया कॉन्सेप्ट आया लॉक बॉक्स का। तो लॉक बॉक्स का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो क्रक्स क्या है, ये है नंबर 1 इज द टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। टाइम एंड कॉस्ट सेविंग क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कंप्लीशन अकाउंट्स में हमें 2 बार ड्यू डिलिजेंस करनी होती है। एक तो जब जो हमारी लेटर ऑफ इंटेंट में हम जो डेट एग्री करते हैं उस डेट को करते हैं, और दूसरा हम करते हैं जब क्लोजिंग अकाउंट हम जब दोबारा प्रिपेयर करते हैं हमें तब भी करना होता है। लेकिन जो लॉक बॉक्स है वो कहता है कि भाई 2 बार के चक्कर छोड़ो, सिर्फ एक बार हमें बता दो ड्यू डिलिजेंस में कि कितना हमारा वर्किंग कैपिटल है, कितना एबिटा है, कितना नेट कैश नेट डेट है, बहुत बात खत्म, आगे हम दोबारा उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। और दूसरा क्या होता है कि जो मेरे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस होते हैं उसमें बायर को बेनिफिट होता है। बायर को क्या बेनिफिट होता है कि लेट से 31 दिसंबर को हमारा ड्यू डिलिजेंस की डेट थी और बायर को लगता है कि अगले आने वाले 6 महीने में जो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है वो मार्केट में बहुत सूटअप होने वाली है, बहुत बढ़ने वाली है। तो वो क्या करता है, वो कहता है मेरे को आज का जो है ना इसी बेस पे मेरे को बता दो कितना देना है मेरे को सेलर को, और आज से ही मैं इसका ओनरशिप ले लूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? आज से ही मैं इसका ओनरशिप ले लूंगा। और जबकि कंप्लीशन अकाउंट में हमने क्या बोला कि क्लोजिंग डेट पे एक्चुअल ट्रांसफर होता है ओनरशिप का, लेकिन लॉक बॉक्स में क्या होता है जिस दिन डेट मेरी थी ड्यू डिलिजेंस की उसी दिन से ट्रांसफर हो जाता है। सो फ्रेंड्स दिस इज द मेन डिफरेंस कि रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा कब ट्रांसफर होता है। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है कि लेट्स से 31 दिसंबर को ही मेरा वहां पे सेलर को हमने बोला कि भाई तू जा, आज से मैं बिजनेस ले रहा हूँ, ऐसे नहीं होता प्रैक्टिकली। व्हाट हैपेंस कि जो सेलर है, सेलर कंटिन्यू टू रन द बिजनेस बट नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर, रादर इन द कैपेसिटी ऑफ अ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। सो ये मेरा हो गया दूसरा डिफरेंस कि यहाँ पे जो सेलर है वो बिजनेस करता है जब एक्चुअल ट्रांसफर होने तक इन द कैपेसिटी ऑफ एक्चुअल बायर, लेकिन लॉक बॉक्स में सेलर बिजनेस को रन करता है इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट फॉर द बायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरा ड्यू डिलिजेंस हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पे भी जैसे हमने कंप्लीशन अकाउंट के अंदर एसपी साइन किया था, एंटर किया था बिटवीन द बोथ पार्टीज, यहाँ पे भी जो बायर और सेलर है
वो बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या हमारे अकॉर्डिंग इस बिजनेस की नॉर्मल वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, क्या इसका एडजस्टेड एबिटा होना चाहिए, जो भी डिस्कशंस हैं वो मेरी यहाँ पे हो जाती हैं एसपी डेट पे, ठीक है। और यहाँ पे आती है अगेन द क्लोजिंग डेट। मैं वो एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरा 30th ऑफ जून था, ये मेरा 31st ऑफ अगस्त था और ये मेरा था 30th ऑफ सितंबर। जो पेमेंट है मेरी, वो पेमेंट मेरी कहाँ होगी, यहीं पे होगी जब एक्चुअल ट्रांसफर होगा। एक्चुअल ट्रांसफर का मतलब कि जब सेलर जो है वो पूरा हट जाएगा और बायर जो है वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। लेकिन अब एक बात सोच के देखो आप कि एक्चुअल में जो ट्रांसफर था, नॉट द ट्रांसफर, आई वुड से द रिस्क एंड रिवॉर्ड, वो मेरा इसी डेट पर ट्रांसफर हो गया। अब जो सेलर है वो बेचारा क्या कर रहा है, एज एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है। बायर को तो अभी इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस के अंदर, जो भी कस्टमर से पैसा लेना है, सप्लायर को पैसा देना है, जो भी एग्रीमेंट्स जो चले आ रहे हैं, एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हैं, वो सारा का सारा भी सेलर ही देख रहा है, सारा बिजनेस को सेलर रन कर रहा है। अब एक बात आप सोच के देखो, सेलर क्या कर सकता है, सेलर ये कर सकता है कि इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, फ्रॉम 30th ऑफ जून टिल 30th ऑफ सितंबर, वो इस बिजनेस की जो वैल्यू है वो उसको निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है कि अपने कस्टमर को बोलता है वो कि भाई तू मेरे को पेमेंट आज कर दे, मैं तेरे को 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट, कि मेरे को लेट्स से किसी कस्टमर से 100 मिलियन लेने थे, मैं बोल रहा हूं कि आप 5 मिलियन का डिस्काउंट दे दो, 95 दे दो, तो 5 मिलियन उस कस्टमर के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिस्काउंट है, वो दे देगा कस्टमर और ये उस पैसे को लेके निकल जाएगा। नंबर 2, सेलर क्या कर सकता है, सेलर कर सकता है कि भाई मेरे को डिविडेंड मिलना चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक बोर्ड मीटिंग पास करेगा, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगा, उसमें बोलेगा 100% डिविडेंड दे दो जी, ₹1 का शेयर था उसको ₹100 का डिविडेंड दे दो। तो उससे क्या हुआ, जो एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो निकाल ली, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो बायर है उसको लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों होगा उसको, कि उसने जो कंपनी की जो वैल्यूएशन लगाई थी वो उसने इस डेट को लगाई थी 30th ऑफ जून को, जब उसने देखा होगा कि कंपनी के एआर इतना है, वर्किंग कैपिटल इतनी है, एबिटा इतना है, जनरल रिजर्व्स इतने हैं कंपनी, उस बेस पे उसने वैल्यूएशन करी। लेकिन सेलर निकला थोड़ा चालू, उसने क्या करा, जो एक इंटरवीनिंग पीरियड था उसके अंदर से पैसा निकाला और अपना 9 तो 11 हो गया। तो बायर के लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है कि उसने पैसे दिए ₹100, लेकिन उसको जो वैल्यू मिली बिजनेस की, बात पता लगे यहाँ पे खाली ₹60 की ही वैल्यू थी बिजनेस की। तो टू प्रोटेक्ट द बायर फ्रॉम दिस सिनेरियो, व्हाट दे डू, व्हाट द बायर डज, जो ये एसपीए होता है, शेयर परचेज एग्रीमेंट, इसके अंदर वो टर्म्स को डिफाइन करते हैं। तो जो ये मैंने आपको केस बताया कि सेलर ऐसे भी कर सकता है, उसको बोलते हैं लीकेजेस, कि बिजनेस की जो वैल्यू थी उसको लीक कर दिया, उसको लीकेज कर दिया। तो जो बायर के एडवाइजर्स होते हैं या हम लोग होते हैं बीइंग अ ट्रांजैक्शन बिजनेस प्रोफेशनल, इट बिकम्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू सजेस्ट द बायर टू ऑफ सच केसेस, सो दैट कि जब हम एसपी साइनिंग, जो हम एसपी एंटर करेंगे सेलर के साथ, तो हम लीकेजेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। हम बोलेंगे सेलर को कि भाई इस दौरान आप बिजनेस तो रन करोगे, लेकिन वैल्यू ऑफ बिजनेस से आपको छेड़छाड़ नहीं करना। अगर आप करोगे तो वो क्या होगा, मेरा रिकॉर्स होगा, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लायबिलिटी किसकी होगी, सेलर आपकी होगी, कि जो हम फाइनल प्राइस आपको पे करेंगे ना बाद में, उसमें से अगर आपने कोई ऐसा केस हुआ तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये हम पहले उसे डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब उसमें एक चीज आती है, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, सेलर क्या बोलेगा कि भाई ठीक है, ये तो चलो बात आपकी ठीक है, मैं ऐसा केस करूंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन इस इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान अगर मैं कोई अपनी नॉर्मल बिजनेस कॉस्ट को इनकर करूंगा, लेट्स से मेरे को एम्प्लॉय को सैलरी दूंगा मैं, भाई 3 महीने हैं, 3 महीने की सैलरी दूंगा मैं अपने एम्प्लॉयज को, हाँ जी दूंगा। कोई मेरे को जो नॉर्मल मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी पेमेंट करूंगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं उनको भी पेमेंट करूंगा, बिल्कुल हाँ जी करेंगे। तो उसको बोला गया, तो उस पर तो सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर तो सेलर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो मेरे नॉर्मल बिजनेस साइकिल के अंदर जो एक्सपेंस होंगे, जो मेरा कैश आउटफ्लो होगा वो तो होगा ही। तो उसको नाम दिया गया यहाँ पे हमारा परमिटेड लीकेज, कि वो लीकेज जो हमारी क्या है, परमिटेड है, तो वो भी हमारी कहां डिफाइन होती है, एसपीए के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो ये शेयर परचेज एग्रीमेंट होता है, दिस इज वेरी क्रूशियल।
प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो भी लिटिगेशंस होते हैं हमारे, जो हम न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में देखते हैं कि भाई डील नहीं हो पाई या XYZ रीजन से नहीं हो पाई, वो इसी रीजन से होती है कि जो SPA जो ड्राफ्ट करते हैं उसके अंदर जो बातें हैं वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। अगर मैं बात करूँ कंप्लीशन अकाउंट की, तो हो सकता है कि जो SPA हमने साइन करा उसके अंदर हमने कुछ अकाउंट कोड यहाँ पे हमने लिए ही नहीं। जब हमने नेटवर्किंग कैपिटल को डिफाइन करा तो कुछ अकाउंट कोड हमने यहाँ पे लिए नहीं। वो इसलिए लिए क्योंकि पता लगा उस टाइम पे तो बैलेंस उनका नील था, तो हमें लगा कि यार ये तो बैलेंस नील है, इसका तो कोई रेलिवेंस नहीं। लेकिन पता लगा उस दौरान उसके अंदर बहुत मटेरियल ट्रांजेक्शन हो गई और वहाँ पे बैलेंस बहुत ज्यादा आ गया। अब सेलर तो कहेगा इसको लो, बाय कहेगा ये तो हम लिया ही नहीं। दूसरा केस मैं ये वाला बता रहा हूँ आपको, लॉक बॉक्स के अंदर लीकेजेस वाला, कि भाई सेलर ने बिजनेस से वैल्यू निकाल दी और बायर ने ढंग से वो ड्राफ्ट नहीं करी, तो बाद में लिटिगेशन आएगी हमारी कि भाई ये तो गलत चीज है। तो द ड्राफ्टिंग ऑफ SPA, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ SPA इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि खाली हमने ड्यू डिलिजेंस कर दिया और हमारा काम खत्म, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली हमें दोनों चीजों पे, once the due diligence is completed, we have to pay attention, we have to give due consideration when drafting the SPA। और इसमें लॉयर्स होते हैं और दोनों सेल साइड बाय साइड के लॉयर्स हैं, TD प्रोफेशनल्स हैं, उनके जो CFO हैं, MD हैं, CEO है, वो सब बैठ के इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है, क्योंकि इसका जो एक एक लाइन की इंपोर्टेंस है वो मिलियंस में होती है फ्रेंड्स। जब बड़ी बड़ी डील्स होती है ना, तो ये SPA ही होता है जिससे डिटरमाइन होता है कि मेरा लिटिगेशन आएगा या नहीं होगा। एंड वी ऑल नो कि अगर कोई लिटिगेशन होती है तो उसमें कितना खर्चा आता है। प्रैक्टिकली हम सब जानते हैं कि एक बार कोर्ट में केस चला गया तो कितने टाइम के लिए आता है और कितना उसमें कॉस्ट भी लगती है और टाइम लगता है और एफर्ट्स लगते हैं। तो ठीक है, तो ये SPA है, चाहे वो मेरा लॉक बॉक्स है चाहे मेरा कंप्लीशन अकाउंट है, इन दोनों के अंदर उसका डिफाइन होना, दोनों की अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीटनेस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि हमने डिफाइन कर लिए और क्लोजिंग डेट पे जो फिक्स प्राइस था, जो हमने फिक्स प्राइस का मतलब जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया था, कहाँ पे, इस डेट को, वो हम सेलर को दे देते हैं। तो ये हो गया मेरा लॉक बॉक्स और ये था मेरा कंप्लीशन अकाउंट। अगर मैं दोबारा से इसको रिवाइज करता हूँ, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, तो देखो बातें जो है इसके अंदर वही बातें यहाँ पे हुई हैं, वही बातें यहाँ हुई थी कि ड्यू डिलिजेंस हमें यहाँ भी करना है, यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी हमें SPA ड्राफ्ट करके साइन करना है, यहाँ पे भी SPA में ड्राफ्ट करके साइन करना है। यहाँ पे भी हम पेमेंट करेंगे, यहाँ पे भी हम पेमेंट करेंगे। द डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट होगी वहां पे हम दोबारा से अकाउंट्स को पे करते हैं। जो ड्यू डिलिजेंस हमने यहाँ किया था उसके बेस पे हम दोबारा से पे करते हैं, जबकि यहाँ हम नहीं करते। यहाँ हम किसको बेस लेते हैं कि ये कि लॉक बॉक्स पे जो सिचुएशन है, लॉक बॉक्स का मतलब ये आप समझे, लॉक बॉक्स कि एक बार हमने डिस्कस कर दिया कि क्या क्या वर्किंग कैपिटल एबिटा होगा और उसको लॉक करके हम भूल गए। एक बार लॉक कर दिया तो कर दिया, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो दिस इज द की डिफरेंस। लेकिन कंप्लीशन अकाउंट में हम दोबारा से कंपेयर करेंगे कि भाई हमारा एग्रीड कितना था और एक्चुअल कितना है, और उन दोनों का कोई अगर डिफरेंस निकल के आता है, मेटेरियल डिफरेंस, तो वो हम यहाँ पे ट्रू अप में एडजस्ट उसको कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन द लॉक बॉक्स एंड कंप्लीशन अकाउंट। एंड नाउ वी विल डिस्कस सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉक बॉक्स मैकेनिज्म, लाइक व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस मैकेनिज्म, when the buyer should opt for the lockbox mechanism, which date should be used, what are the leakages and permitted leakages, and अब एक चीज और है इसके अंदर, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ जब हम बात कर रहे हैं लॉकबॉक्स की। अब एक आप बात सोच के देखो, हम सेलर को पेमेंट किस बेस पे कर रहे हैं कि जो बिजनेस की वैल्यू मेरी यहाँ पे थी, लेकिन पेमेंट मैं कब कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरी 30th ऑफ जून थी और ये मेरी 30th ऑफ सितंबर, ये टाइम डिफरेंस है। चलो यहाँ तो मेरे 3 महीने हैं, लेकिन जो बड़ी डील्स होती है 3 महीने के बजाय ये 1.5 साल भी हो सकता है, ये 24 मंथ्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये SPA साइनिंग ड्राफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो ये जो ड्यूरेशन है मेरी बहुत ज़्यादा हो गई, तो सेलर को ये नहीं लगेगा कि यार मेरे को तो जो वैल्यू थी वो तो इसी यहाँ की मिली है, मैं तो यहाँ पे एज अ फालतू में फ्री में काम कर रहा हूँ एज अ एजेंट, मेरे को कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए कि अगर मैं इतने एफर्ट कहीं अपने और बिजनेस में लगाता तो मेरे को कुछ रिटर्न मिलता, जो हम पढ़ते हैं। तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर सेलर यहाँ पे काम ना करके अपना कुछ और करता तो उसको कहीं ना कहीं रिटर्न अपना अर्न करता,
तो बायर बोलता है कि अच्छा भाई ठीक है, आप ये बिजनेस करते हो, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, जो हमने परचेज प्राइस फिक्स किया था ऑन द लॉक बॉक्स डेट, उसके उस पर हम आपको कुछ इंटरेस्ट भी दे देंगे, पर डीएम जिसको हम बोलते हैं कि ठीक है आपने इतने दिन हमें काम करा तो उस पर आप हमसे इंटरेस्ट भी ले लो। लेट्स से अगर 100 मिलियन का मेरा परचेज प्राइस था और मैंने कहा कि 8% का मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो आप और लेट्स से इसका जो ड्यूरेशन थी वो 1 साल थी फॉर द सिंप्लिसिटी, तो मैं कहता हूँ 100 मिलियन के अलावा 8% भी ले लो मेरे से, तो 108 मिलियन आप मेरे से ले लो। तो ये भी एक फैक्टर होता है लॉक बॉक्स के अंदर। और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट फ्रॉम बायर एंड सेलर एंड demerits or the disadvantages or the challenges from the buyer's point of view and from the seller's point of view. So friends, so far we discussed the key difference between the lockbox mechanism and the completion recall mechanism and how the transaction closes in both the mechanisms. अब हम बात करते हैं थोड़ा और लॉकबॉक्स के बारे में। If you see हमने यहाँ पे जो पैरामीटर्स है लॉकबॉक्स पे 5 पैरामीटर्स में इसको डिवाइड कर लिया। नंबर 1 इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म्स, number 2 when to adopt the lockbox, number 3 date for the lockbox, number 4 leakages, and number 5 is the per diem or the interest. If you see the leakages point and per diem point is already we discussed when we were discussing the lockbox mechanism. अब हम बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म को समझना कैसे। तो इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक इकोनॉमिक सर्टेनिटी जो बायर उसमें क्यों प्रेफर करता है इस वाले मैकेनिज्म को, टू सी द इकोनॉमिक सर्टेनिटी। व्हाई आई एम सेइंग दिस कि कंप्लीशन अकाउंट में क्या हुआ था, हमने ड्यू डिलिजेंस को 2 बार किया था और दोनों बार हमने जो अकाउंट्स थे वो दोबारा बनाए थे। लेकिन यहाँ पे लॉकबॉक्स के अंदर सिर्फ हमें एक ही बार बनाने होते हैं और एक बार हमने जो फिक्स कर लिया वही रहता है मेरा, उसके बाद हम उस पर दोबारा डिस्कशन नहीं करते। तो एक सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई कैन से दिस मैकेनिज्म इज प्रेफरेबल। नंबर 2, this mechanism also provide benefit, very significant benefit to the buyers in case of fast growing business. Why I am saying this, and of course the vice versa. Let's take some real life example. Recently अभी जो PPI सूट जो बन रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, आज से अगर मैं बात करता हूँ फरवरी में, तो फरवरी में कोई जानता नहीं था कि PPI सूट भी कुछ होते हैं। लेकिन as on today, India is the second largest producer of those suits इन वर्ल्ड। तो थिंक अबाउट इट कि अगर किसी बायर ने उस टाइम पे एक्वायर कर ली थी कोई कंपनी जो ये सूट बनाती थी मेरी, तो आज के टाइम में उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई उस प्रोडक्ट की, तो ऑफकोर्स जो मेरी वैल्यू है बिजनेस की वो ड्रेस्टिकली आई कैन से सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, पीवीआर का एग्जांपल मैं लेता हूँ। पीवीआर सिनेमा जो है हमारे कि फरवरी में या मैं जनवरी में उसका जो प्राइस था, उसकी जो वैल्यू थी वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ड्यू टू दिस करंट लॉकडाउन सिचुएशन अभी सारे पीवीआर हॉल्स बंद हैं, मॉल्स आर आल्सो क्लोज, तो लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, तो जो ऑब्वियसली उसको रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है पीवीआर की जो वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है। अगर मैं उसके शेयर प्राइस की बात करता हूँ आपसे फॉर एग्जाम्पल, तो उसका आई थिंक जनवरी में उसका शेयर प्राइस वॉज ऑलमोस्ट 1600 रुपीज़ और आज की तारीख में उसका 800 रुपीज़ है अप्रोक्सीमेटली, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन आप देखो कि ओनली 3-4 महीने के अंदर 50% जो शेयर्स की वैल्यू है उसकी गिरावट आ गई है। तो ये जो लॉकबॉक्स मैकेनिज्म है, ये दोनों चीजें हैं कि ये बेनिफिट भी बहुत अच्छा देता है बायर को, और अगर एडवर्स सिचुएशन आती है मार्केट में तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी बायर को ही इसमें उठाना पड़ता है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें वही होता है कि ऑल्दो बोथ पार्टी सीक्स टू फोकस ऑन द सिंप्लिसिटी कि भाई एक बार हमने बना लिया, बात मेरी फाइनल होगी, उसके बाद हम दोबारा उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरा आता है मेरा व्हेन टू अडॉप्ट द लॉकबॉक्स, कि लॉकबॉक्स हमें कब अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसके अगर मैं इसको समराइज करता हूँ तो 2 सिनेरियो होते हैं। नंबर 1 एक जो हमने पहले डिस्कस किया था, इकोनॉमिक सर्टेनिटी, कि जहाँ पे इकोनॉमिक सर्टेनिटी हो, और नंबर 2 द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस, कि जहाँ पे इंटीग्रेशन जो है दोनों बिजनेस का बायर सेलर को बहुत जल्दी हो सकता है। जो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ टाटा का और जगुआर का, दोनों मेरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, तो जो इंटीग्रेशन होगा बिजनेस का वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जो SOPs हैं मेरे वो मोर और लेस सेम होंगे। ऑफकोर्स प्रोडक्ट दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन जो काम करने के तरीके हैं या मार्केट की जो उनको नॉलेज है, वो जो जो रिक्वायरमेंट होती है
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर वो बायर को होगी, वो टाटा को पहले से पता होगा, तो उसमें रैपिड इंटीग्रेशन हो जाएगा बिजनेस का, ठीक है। लेकिन ये हर बिजनेस के लिए, हर ट्रांजेक्शन के लिए सुटेबल नहीं होता लॉक बॉक्स। क्यों नहीं होता? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि मेरी एक कार्व आउट डील है, मतलब मेरी एक सेल साइड डील है, और सेल साइड डील में मैं एक अपना बिजनेस सेल कर रहा हूँ, लेकिन उस बिजनेस के फाइनेंशियल्स मैंने कभी नहीं बनाए। जो अगर मैं बात करता हूँ उसकी सेगमेंट रिपोर्टिंग या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने वो कभी नहीं बनाए। अब एक चीज सोच के देखो कि उसके कभी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ही नहीं, तो क्या बायर को कंफर्ट आएगा उस पर? ऑफकोर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि जब तक उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है बायर के पास, उसको नहीं पता कि नॉर्मल वर्किंग कैपिटल क्या हो सकती है, कि सेलर, हाई चांस होते हैं कि सेलर अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके दिखाए, प्रेजेंट करे ड्यू डिलिजेंस में। एंड वी ऑल नो कि ड्यू डिलिजेंस एक 100% ऑडिट नहीं होता हमारा, इवन ऑडिट में 100% ऑडिट नहीं होता, उसमें भी हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं ड्यू टू टाइम कांस्टेंट। तो जब ऑडिट के अंदर हम 100% चेकिंग नहीं कर पाते, तो ड्यू डिलिजेंस में ऑफकोर्स हम चेक नहीं कर सकते चीजों, तो जो रिस्क है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इन ऐसी ट्रांजेक्शन्स के लिए लॉकबॉक मैकेनिज्म इज नॉट प्रेफरेबल, ठीक है। सो we have to advise our client seeking, considering all the factors to maximize the reward and minimize the risk from the buyer's point of view. Okay. Number third is the date for the lockbox. कि भाई ठीक है, हमने मतलब डिस्कस कर लिए दोनों पार्टी ने कि भाई ठीक है हम लॉकबॉक्स करेंगे। जो टर्म शीट जो डिफाइन करते हैं डील होने से पहले, डील रिलीज होने से पहले, उसमें हमने देख लिया कि हम लॉक बॉक्स मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। अब उसमें बात आती है डेट की। तो जो मेरा प्रीवियस एग्जांपल इसमें मैंने बात की थी 30th जून, तो वो डेट कैसे निकलती है? तो बेसिकली प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस, पार्टीज प्रेफर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, कि जो मेरी लास्ट डेट है ना उस डेट को वो ले लेते हैं। लेट्स से 31 दिसंबर था, तो उस डेट को बेस लेके ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करते हैं। जो वर्किंग कैपिटल का नॉर्मलाइजेशन होता है, एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो उस डेट पे निकाल देते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कि जो डिफरेंस होता है, लेट्स से 31 दिसंबर वाज माय लास्ट डेट, और आज मैं काम कर रहा हूँ लेट्स से 30 जून को, और इस 6 महीने के अंदर मेरे काफ़ी बिजनेस के अंदर जो है ड्रास्टिक चेंज आ गए, सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए। तो हर सिनेरियो में, या फिर अनदर एग्जांपल कैन बी, यहाँ पे टाइम डिफरेंस है मेरा, कि आज की डेट में जो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेट थी उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें कंपनियां क्या प्रेफर करती हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंट जिस डेट पे बने हुए हैं लास्ट, आप वो ले लो, लेट्स से 30 जून ले लो। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपसे डिस्कस करूंगा, वो क्या है कि जनरली एक हमारा इंप्रेशन होता है कि भाई इन ड्यू डिलिजेंस हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इतनी नॉलेज हमें नहीं चाहिए होती है। दिस इज प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। पीपल जो कलीग्स होते हैं, जो टीम काम करती है ड्यू डिलिजेंस में, उनकी कितनी टेंडेंसी होती है, उनका माइंडसेट होता है कि यार ठीक है, हम तो ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं ना, हमें एएस की नॉलेज, आईएफआरएस की नॉलेज इतनी कंपल्सरी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं इस बात को ना एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि इंपोर्टेंस क्यों है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज की। लेट्स से ऑडिट मेरे स्टेटमेंट मेरे पास नहीं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दोनों पार्टी ने एग्री करा कि भाई हम 30 जून का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है, मैनेजमेंट अकाउंट से, वो हम ले लेते हैं। हमने कहा ठीक है। अब मैनेजमेंट ने क्या करा, मैनेजमेंट फॉलो करती है आईएफआरएस, या कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। वो जर्मन भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकते हैं, यूएस भी हो सकता है। फॉर आवर एग्जांपल हम बात करते हैं आईएफआरएस, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन क्या करा उसने, मैनेजमेंट ने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि उसका ऑडिट तो हुआ नहीं है, तो किसी थर्ड पार्टी ने तो चेक किया नहीं। उसने क्या करा, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना था उसको एक्चुअल बेसिस पे, वो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कैश बेसिस पे। अगर कंपनी एक्चुअल बेस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती तो उसका रेवेन्यू आता, टॉप लाइन आती 100 मिलियन यूरो की। लेकिन कंपनी ने कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करा, अपनी उसने टॉप लाइन इंक्रीज करके दिखा दी, 120 हो गई उसकी। ठीक है जी, तो कितना डिफरेंस आया, 20 का। ओके, अब जो इंडस्ट्री का मल्टीप्लायर था, लेट्स से फॉर द सिंपलिसिटी वो था 5। ठीक है, तो एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है मेरी, अगर मैं बात करता हूँ बाकी वेरिएबल फैक्टर्स थे मेरे, तो टॉप लाइन में कितना इम्पैक्ट पड़ा मेरा, कि अगर मैं एक्चुअल बेस पे करता तो मेरा इम्पैक्ट होता 100 इंटू 5, 500 मिलियन यूरो। अब मैंने कैश बेसिस पे करा तो मेरा 120 इंटू 5, 600 मिलियन यूरो। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 100 मिलियन यूरो। अब बात समझ रहे हो मेरी। अब इसमें एक बात आप कह सकते हो कि भाई
जो उसने कैश बेसिस पे रेवेन्यू दिखाया है उसका जो दूसरा डबल अकाउंटिंग इम्पैक्ट मेरा कहाँ होगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा मेरा डेफर्ड रेवेन्यू में। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। डेफर्ड रेवेन्यू मेरी अगर मेरी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में है तो मैं उसको वर्किंग कैपिटल के अंदर दिखा दूंगा, मैं वहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात सोच के देखो आप, मैं वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, एप्पल टू एप्पल बेसिस पे करते हैं, मतलब डॉलर टू डॉलर बेसिस पे। तो मैं एडजस्टमेंट कितनी करूँगा, खाली 20 मिलियन की ही कर पाऊंगा। और मैनेजमेंट ने क्या करा, अपने अकाउंट्स कितने से इन्फ्लेट कर दिए, इम्पैक्ट 100 मिलियन। तो इन द नेट सेल 80 मिलियन से आपका एंटरप्राइज वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक पार्ट नहीं फॉलो करा हमने, उससे आपकी 80 मिलियन का बुक्स में इम्पैक्ट आ गया। अब आप सोचिए, देखो 25 टू 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे, और लेट से उस कंपनी पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई ना होके 4 या 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, और उसके अंदर मैनेजमेंट अगर एक एक एडजस्टमेंट ऐसी कर दे तो जो परचेज प्राइस है वो तो मेरा पता नहीं कहाँ हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो मेरी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन द ट्रांजेक्शन डिलिजेंस प्रोफाइल। Reason being, unless and until we don't know the correct accounting mechanism, the correct accounting policies, then how we can challenge and question the management accounting policies? राइट, कि जब हमें खुद ही नहीं पता कि भाई इसका करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो हम मैनेजमेंट के अकाउंट्स को रीड करके हम उन पे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, तो हम वो कैसे पता लगा सकते हैं कि उन्होंने सही करा है गलत करा है। तो ठीक है, बस ये मेरे को एक इंपॉर्टेंस आपको बतानी थी कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमें अकाउंटिंग की भी नॉलेज होना है ट्रांजेक्शन डिलिजेंस। नंबर 4 तो हमारा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीकेजेस हमारी होनी चाहिए, प्रॉपर्ली डिफाइन होनी चाहिए हमारी एसपीए के अंदर, बोथ द लीकेजेस एंड द परमिटेड लीकेज। अगर इसमें एग्जांपल लेके चलता हूँ आपसे, तो लीकेजेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा ग्रुप फंड ट्रांसफर नॉट एट द आर्म एंड प्राइस, एक्स ग्रेशिया पेमेंट। तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या होती है मेरी, तो एक तो होती है मेरी ग्रेचुटी पेमेंट, कि जहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, जो लॉ के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देनी होती है सर्विस, उसने टेंडर उसका जो पूरा होता है। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई इस एम्प्लॉय ने कंपनी के लिए बहुत काम करा है, दिन रात मेहनत कर रही है, और बहुत अच्छा उसने जो उसका परफॉर्मेंस रहा है ड्यूरिंग हिज टेन्योर विद द कंपनी इज वेरी एक्सेप्शनल। तो वो कहती है कि भाई ओवर एंड अबाउट मैं आपको कुछ पैसे और दे देती हूँ। एक्स ग्रेस मतलब आउट ऑफ ग्रेस, आपके काम से खुश होकर मैंने और पैसे दे दिए। तो ये भी मेरा किसके अंदर होगा, लीकेज के अंदर, क्योंकि सेलर और बायर जो है, सेलर क्या कर सकता है, सेलर इस फॉर्म में बिजनेस से वैल्यू को निकाल सकता है, वैल्यू को कम कर सकता है, तो बायर उस पर रोक लगा देगा। और ऑन द अदर हैंड जो परमिटेड लीकेज होती है वो हमारी जो जरूरी होती है बिजनेस के लिए, कि भाई मैंने इंटरग्रुप फंड ट्रांसफर करा लेकिन एट आर्म एंड प्राइस, कि प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने उस पर चार्ज किया, आई कैन से जो मेरी बिजनेस कॉस्ट है, मेरी जो रूटीन की बिजनेस कॉस्ट है, उनको इनकर करने के लिए सेलर ने कुछ पैसे दिए पार्टीज को, तो डेट कम्स इन द परमिटेड लीकेज, कि भाई ये तो बिजनेस, ये लीकेज तो मेरी होंगी ही होंगी, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता बायर। और लास्ट में हमने डिस्कस किया पर डीएम और इंटरेस्ट रेट, कि टू सेफगार्ड, टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द सेलर, बायर्स को क्या करते हैं, इन एडिशन टू द परचेज प्राइस वो उसको कुछ एडिशनल इंटरेस्ट रेट भी उसको दे देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉक बॉक मैकेनिज्म। आई रियली होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम कुछ डिमेरिट्स या बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर तो देखो, बेनिफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेलर और बायर दोनों के लिए सेम होगा। क्या सेम होगा, टाइम एंड कॉस्ट की सेविंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि मेरे को ड्यू डिलिजेंस बार बार नहीं करना पड़ता, एफर्ट्स इसमें कम लगेंगे, कि एक बार हमने डिस्कस कर लिया वही हमारा चलता रहेगा और हमें दोबारा से डिस्कस नहीं करना। नंबर 3, जो चांसेस ऑफ लिटिगेशन होते हैं वो मेरे कम होते हैं लॉक बॉक्स में, क्योंकि लिटिगेशन मेरे कब होते हैं फ्रेंड्स, जब मैं दोबारा से उस चीज़ को मैं दोबारा से री इवेल्यूएट करता हूँ मैं, कि मैंने पहले ये करा फिर पता लगा नहीं है इसमें, तो ये चीज़ भी मेरे को करनी चाहिए थी, तो वहाँ पे लिटिगेशन मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन लॉक बॉक्स में तो हमने एक ही बार करते हैं हम चीज़ें और फिक्स करके उसको एसपी में ड्राफ्ट कर देते हैं, बात खत्म, उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करते हैं। तो दीज आर द, और जहाँ पे अब मैं बात करता हूँ फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसको इकोनॉमिक सर्टेनिटी होती है कि भाई ठीक है, एक बार मेरे को पता लग गया, मेरे को पता लग गया मेरे को कितना पैसा देना है। मैं प्राइवेट इक्विटी की बात करता हूँ तो प्राइवेट इक्विटी को पता लग जाता है कि भाई लॉक बॉक्स में कितना मेरे को पैसा देना है, और फिर वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन कंपटीशन बॉक्स में तो उनको नहीं पता होता कि क्या क्या, पता लगे परचेज प्राइस एडजस्टमेंट में मेरी कुछ बाद में मटेरियल अमाउंट भी निकल के आ सकती है, ठीक है। और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, उसको वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो है, जो वैल्यू है उसके बिजनेस की, वो भी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि जो जनरली क्या होता है लॉक बॉक्स का जो टाइम फ्रेम होता है बिटवीन द लॉक बॉक्स डेट एंड द क्लोजिंग डेट इज जनरली स्मॉल एज कम्पेयर टू द कंपटीशन अकाउंट। सो ये मेरे कुछ हो गए बेनिफिट्स। अब मैं बात करता हूँ डिमेरिट्स की या डिसएडवांटेज के, चैलेंजेस की। तो बायर के लिए चैलेंज क्या हो सकता है कि अगर कोई मेरा फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है तो उसमें जो उसका रिस्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, कि अगर बिजनेस को डेटोरेट हो गया मेरा, जैसे मैंने आपको बात करी थी पीवीआर का एग्जांपल लिया था, तो वो पूरा का पूरा किसको बियर करना पड़ेगा, वो बायर को करना पड़ेगा, ठीक है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है कि सेलर को अगर ये लगता है कि जो उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है यहाँ पे वो उसको कम मिल रहा है, उसको और मिलना चाहिए, तो उसके लिए वो एक लॉस हो सकता है। दूसरा वो ये कह सकता है कि जो वैल्यू है मेरी बिजनेस की, भाई ड्यू टू सम एक्सपायरी फैक्टर्स वो मेरी इसलिए कम आ रही थी लॉक बॉक्स रेट पे, अगर आप बाद में देखोगे तो वो मेरी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए। लेकिन अगेन ये बहुत ही अगेन डिस्कशन के पॉइंट्स होते हैं जो एसपी के अंदर जनरली डिस्कस हो जाते हैं पहले, ताकि लिटिगेशन मेरी बाद में रेस ना हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लॉक बॉक्स एंड द कंपटीशन अकाउंट। आई होप जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे विद रिगार्ड टू दीज टू मैकेनिज्म्स आर वेरी क्लियर नाउ, and in case of any questions, of course you can definitely connect with me at my mail id ctarunbhardwaj99@gmail.com. Till that time, stay safe, bye bye.